हेलो गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे, फिट फाट होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। लें जी गाइस, हमने बहुत सारे विलेज देखे हैं, लेकिन आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है जी वी विजिटेड इंडियाज रिचेस्ट विलेज। हाउ इज एवरीवन सो रिच। चलें जी, रिचेस्ट विलेज देखने जा रहे हैं। हम देखने जा रहे हैं कि हर कोई इतना अमीर जो है वो कैसे है। तो आए देखते हैं। When you think about the mountains, the region that I'm talking from will be giving the justice to your imagination of what you think of Himachal, of what you think of the mountains to be. It's not only because of what you see, but also because of the people you meet here, the way they make you feel, the homes that give you their own cooked food. I am Mayur, by the way. I'm the founder of Rahagar. We are coming to you from Himachal Pradesh, the same state where my father got me when I was 3 years old. A state where there are mountains, there are rivers, there are valleys. That's the image I had in my mind when I was growing up. And I'm very glad nothing has changed here, including the sounds of the birds. I'm coming to you from a place called the Sitavan Orchard. It's a lovely homestay and it is in the region of Fortgarh Thanedar belt. This is also called the Apple Bowl of India. The region we are at is somewhere in between the busy and the very busy. The busy is the Simla belt and it's maybe sometimes it's too busy, but the very busy as of now is the Kaza region. And this is in a little cocoon of its own. The Kodgarh Thanedar belt comes as a big surprise for people who are looking at it as not as a transit place to go from, let's say, Chandigarh to Spiti, but as a destination to be at. Right now, I'm at the Sitavan Orchard. Minakshi Jena and her family runs this place. So his dad is from Kothai and his mom is from Kodgarh, from Singha family. So this she inherited from her parents and we inherited from her. और मैं आपको एक और बताता हूँ कि शुरू में जो है निचली मंजिल में गाय रहती थी। आजकल किन्नौर में भी ऐसा ही आपका सारा सिस्टम वही था। उनका तो खैर और भी सिस्टम एक था कि लाइक इन किन्नौर, खैर यहाँ भी हमारे गाय उसमें रहती थी एक कमरे में। देन ग्रेजुअली भेड़ें थी, वो भी उस बरांडे के नीचे रहती थी वहीं उसी कमरे में। वो ग्रेन के लिए जो आप कमरों में पड़ी है ना जी, वो दीज बॉक्सेस दे आर कॉल्ड मस्टीज. सो ऑल दे आर इन ऑल द रूम्स. नो nails are used in that, and the wood is neutral, some sort of, I don't know what wood they make, and it doesn't smell, the grain won't spoil, and so everybody had that. पहले तो खुद काम करते थे हम, मैं भी खुद कर लेता, कटिंग कर लें, लकड़ी काट ली, कुछ करना मतलब। Raju, don't lie. Now I don't do anything. Raju, I've never seen you work. आज क्या पाल एंड ऑल दे, हम गेस्ट आए थे उनसे भी मैंने लकड़ी कटाई। उनसे काटी हुई एक दो बार कभी फन से। ऐसे जस्ट फॉर हॉबी। No, he never worked. He made people work. He and Raju, they are Gaurav Saabs. I am the one who works. होता है कि some people are not born to work. Initially when it started, when most people thought कि who will come here, कि मतलब उस टाइम तो थे नहीं ना, they were not. apprehensive. The tariff was 500 rupees. Breakfast, lunch, high tea, barbecue, dinner. That room where you were supposed to be staying, that was the kitchen initially. Then that was a big place. There was no water supply at that time. I'm talking about 70s. There was a one Bowie's that still is there about 1 kilometer away. So water was being carried from, we would carry water from there.
for all the needs, for your home, And for drinking, for irrigation, vegetable everything garden. for vegetable Imagine garden. they used to get water from. To everybody was used to, even my mother would sometimes fetch drinking water to the Bauri. I'm sitting at the Sitaran Orchard today as I speak to you. And last night was my first night of staying here. And when I woke up this morning to these sounds, to this not so winter breeze, but it felt lovely on my face when I went out to the gallery in the balcony. It felt exactly like waking up at Grandma Stokes, the place that we have worked with for so many years. जब मैं 7th 8th में था तो मैं अपने ऑर्चर्ड की ग्राफ्टिंग शुरू कर दी थी, कुछ प्रूनिंग शुरू कर दी थी, जो हॉर्टिकल्चर है, चेरीज़ उगाना, सेब उगाना, क्योंकि हमेशा ही दादाजी के साथ छुटपन से लेके उनको काम करते हुए देखा था, तो मेरा फर्स्ट लव जो है वो हॉर्टिकल्चर है। जब मैं यंग था तो मेरे दिमाग में था कि आई वांटेड टू ट्रैवल द वर्ल्ड, बट वो मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। तो मैंने सोचा जो ये लोग ट्रैवल करते हैं सारी दुनिया, इनके साथ बैठूं और इनके लैपटॉप्स पे इनकी कहानियाँ सुन के मैं दुनिया घूमूं। शुरू किया था ये 2013 में हिमाचल गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी कि जो बच्चे लोग हैं यहाँ से माइग्रेट ना करें एंड छोटे छोटे होम स्टेज़ खोले। जो लोग फार ऑफ प्लेसेस से आते हैं वो ऐसी ब्यूटीफुल इंटीरियर्स को देखें हिमाचल के। तो उस टाइम मेरे जहन में आया कि मैं भी एक होम स्टे खोलता हूँ। हाँ, उस टाइम जब हमने ये शुरू में जब घर बनाया तो ये दरअसल हम 2 भाई हैं एंड इसका जो डिज़ाइन इस तरह से किया हुआ है, मतलब हमने अलग तरह से इनहेरिट करना था दोनों ब्रदर्स ने, पर ब्रदर तो रहे नहीं बेचारे, तो उनके वाइफ और बच्चे हैं। तो अब हमने फिर इसको जब बाद में कलेक्टिवली हमने इसको एज अ होम स्टे शुरू किया। हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर सत्यानंद स्टोक्स थे, उन्होंने एप्पल्स में बड़ा भारी कंट्रीब्यूट किया था इस एरिया में, बिकॉज ये 1960s में उनके मदर ने उनको 5 एप्पल सैपलिंग्स भेजे थे और उस वजह से ही सारी इकोनॉमिक रेवोल्यूशन हमारे यहाँ कोटगढ़ इलाके में या हिमाचल में आप बोलो, और 70s और 80s में यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम थी वो हाईएस्ट थी एशिया में, अपार विद सिंगापुर। सबसे पहले यहीं पे सेब शुरू हुए एंड दिस इज़ दी एक्चुअली एप्पल बोल ऑफ इंडिया एंड ऑल माई ग्रैंडफादर जो है वो नर्सरी, ही वाज द राइट हैंड मैन ऑफ मिस्टर स्टोक्स, और तो वो नर्सरी यहाँ पे हम पैदा करते थे। सारे जुब्बल, कोटखाई, भूटान और जगह किन्नौर से जगह से लोग आते थे और हमारे घर से एप्पल की सैपलिंग्स ले जाते थे। जो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने जो एप्पल्स लाए थे, ये उनके मदर ने उनको गिफ्ट किए थे 5 एप्पल सैपलिंग्स। तो वो एज अ क्रिश्चियन मिशनरी, क्वेकर क्रिश्चियन मिशनरी अमेरिका से आए थे टू वर्क इन दिस लेपर कॉलोनीज। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि वो सेटल हो यहाँ पे, उनके दिमाग में जहन में था ही नहीं उस टाइम कि वो सेटल हो यहाँ पे। सो वाइल वर्किंग इन दोज लेपर कॉलोनीज ही गॉट सिक एंड आफ्टर ही गॉट सिक ही वॉज सेंट टू सैनिटोरियम हॉस्पिटल इन शिमला। सैनिटोरियम हॉस्पिटल था उस ज़माने में, वहाँ पे समर कैपिटल हुआ करता था। जब वो वहाँ पे ठीक हुए, वहाँ से उनको फिर कोटगढ़ भेजा गया। तो वहाँ पे एक मिशन स्कूल है एंड चर्च है वहाँ पे एक, तो ही स्टार्टेड टीचिंग देयर इन दैट चर्च एंड फ्रॉम देयर ही फेल इन लव विद दिस प्लेस। जो ये थानेदार जो जगह है ना, यहाँ पे ये ही फेल इन लव विद दिस थानेदार जगह। उस ज़माने में जो उनके पिताजी थे वो इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो यहाँ सेटल हो। रीज़न ये था कि ही वॉज फ्रॉम अ वेरी वेल्दी फैमिली इन अमेरिका। तो उनके पिताजी को लगा कि बिकॉज ही इज़ यूज्ड टू अ कुशी लाइफ स्टाइल, तो ये 4-5 साल में ना इनकी हेकड़ी निकल जाएगी, ये वापस आ जाएंगे। क्योंकि उस ज़माने में ना यहाँ पे रोड्स थे, ना स्कूल था, ना बिजली थी, ना पानी था, और गरीबी बड़ी भारी थी, गुर्बत बहुत थी। वो मतलब तकरीबन पहले हर हिल स्टेट्स में होया करती थी। द रीज़न वॉज बिकॉज समर वॉज वेरी फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इन दोज डेज। अभी भी समर शॉर्ट टाइम के लिए रहती है, बट अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी अब काफ़ी बढ़ गई है, यहाँ पे कुछ होता नहीं था।
तो फिर जो ये इंट्रोडक्शन जो हुई थी उनके जो एप्पल्स की, फिर क्योंकि उनके मदर के साथ बड़े अच्छे ओकेजन थे, ही वुड राइट लेटर्स एवरी वीक, ही प्रॉमिस्ड हिज मदर दैट आई विल राइट लेटर टू यू। तो उन्होंने अपने जब मदर को लिखा कि मुझे लगता है कि यहाँ की जलवायु सेब उगाने के लिए बहुत अच्छी है, तब उन्होंने, उनके जो मदर है ना, उन्होंने 5 एप्पल सैपलिंग्स अमेरिका से एज क्रिसमस गिफ्ट दिए थे उनको। और उससे ये स्टार्क ब्रदर्स नर्सरी की एप्पल्स थी, और उस स्टार्क ब्रदर की नर्सरी की मतलब एप्पल सैपलिंग आने से ही दी होल एप्पल रेवोल्यूशन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम हियर। और फिर यहाँ पे इतने अच्छे सेब होने लगे और इतने सेब होने लगे कि यहाँ पे दर्जा, यहाँ इस कोडगर का दर्जा पड़ा एप्पल बोल ऑफ इंडिया। No matter wherever I wake up in this region, in this belt, there's not one home that feels like home. The entire region perhaps feels like home. कह रहे हैं आपको सिर्फ एक घर जो है वो अपने घर जैसा नहीं लगेगा, बल्कि सारा इलाका जो है वो आपको ऐसे फील होगा जैसे आप अपने घर पे ही हैं। अच्छा, मतलब कि हॉस्पिटैलिटी बहुत है वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक खुश अखलाक हैं। जो टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे, जो आते हैं अच्छा, वो उनसे बता रहे थे अच्छे कि से स्टार्ट मिलते में हैं। इधर रहना बहुत मुश्किल था, ना इधर पानी था, पानी ना वो इधर बता गैस रहे थे थी, ना, ना वो इधर हर कोई चीज़ के लिए थी। पानी जो थे वो फैच करते थे, पानी निकाल के लाते थे, पीने के लिए भी, बाकी ज़रूरतों के लिए भी। मेन उधर मतलब कि जो उनका है सोर्स ऑफ इनकम जो है वो सेब के सेब, दरख्त है। हाँ उधर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और कह रहे हैं कि उनको 5 सेब गिफ्ट में आए थे, फिर उधर से उन्होंने उनसे हाँ, काश काम किया start बिल्कुल। और फिर उधर से उनकी नस्ल हाँ, बढ़ी। कहते पर इधर से जिसने भी मतलब इसकी काश करनी होती है वो इधर से लेके जाते हैं हमारे। यार हिमाचल बहुत प्यारी जगह थी यार, हिमाचल अच्छी जगह बनी हुई है ये, हिमाचल का था आगे थानेदार। अच्छा, मैंने एक चीज देखी है कि यार जितने लोग भी हैं ना सारे उधर वेल एजुकेटेड, पढ़े लिखे और अच्छा खासा इंग्लिश बोलने वाले लोग। यार अगर वो सब इंडिया का सबसे अमीर तरीन विलेज है, हाँ, और तो कह लोग रहे भी तो वैसे ही होंगे हैं यार फिर। मतलब इस जगह का जो लिटरेसी रेट था ना वो सबसे हाई होता था हिमाचल प्रदेश का। उन्होंने ये भी और बताया। वो बता रहे थे कि ना कि इंडिया ने फिर ऑर्डर दिया था, फिर शायद इधर घर वगैरह खत्म कर दिए जा रहे थे या क्या था, फिर उन्होंने ऑर्डर किया था कि कुछ जो घर है ना उनका वहाँ पे स्टेबल रहना चाहिए, वहीं रहना चाहिए ताकि लोग आए वो यहाँ की खूबसूरती को देख सकें, वहाँ रह सकें, विजिट कर सकें। तो उसके लिए उनको फिर उसने कहा, मैंने सोचा कि मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ रहूँगा, जो लोग दुनिया भर से घूमने के लिए यहाँ पे आते हैं मैं उनसे उनकी दास्तानें सुनूंगा कि वो। तो काफ़ी अच्छी उन्होंने बातें की और अब बड़े प्यारे घर बनाए गए हैं यार, उनका घर बहुत प्यारा था जो डबल स्टोरी बना था। वो कहते हैं हम 2 भाई थे, तो एक भाई जो उनका वो उनकी शायद डेथ हो गई है, तो उनकी फैमिली रहती है वहाँ पे, तो वो एक जैसे ऊपर नीचे बना हुआ था, प्यारा घर था उनका। चलिए जी गाइस, बाकी बहुत अच्छा और बहुत कमाल का वीडियो बनाया गया था। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, रखें बहुत सारा ख्याल, गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।